Hello everyone, welcome back to my channel. This is day 2 of Microeconomics chapter 1 for class 10th. So today we'll be discussing about branches of economics and types of economics. So first of all, we start with types of economics. So there are two types of economics, positive and normative economics. Now, what do we mean by these? Positive economics and normative economics. Positive economics tells us what the situation actually is. So, we can say, for example, जो एक normal declarative statement होती है, we can say that comes under positive economics. It will be more clear when I'll give examples. For example, prices in the Indian economy are rising. We know that prices of various commodities are increasing day by day. So when we are stating something, it is an example of positive economics. Whereas normative economics tells us what should the situation be, what should have been done, or what should have been achieved, or what ought to be done, right? So for example, we took the example in positive that prices in Indian economy are rising. So under normative economics, we can say the statement as India should take steps to control rising prices. So the key word is should. So in exams, sometimes you are asked the difference between positive and normative. Sometimes you are given statements and you have to tell whether these are examples of positive economics or normative economics. So wherever the word should or ought to is there, you have to say that it is normative economics. We'll be discussing in detail, and then you'll get to know. So पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशन एक्चुअली है, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डे 1 की इकोनॉमिक स्टडीज एक्चुअली व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने डे 1 में पढ़ा था कि दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? इट स्टेट्स व्हाट द सिचुएशन इज, right? So how the economic problems are actually solved, या फिर word is actually, actual में क्या हो रहा है, या फिर क्या what should be. जब हम should be का क्लॉज डालते हैं that comes under normative. तो हम normative में बोलते हैं it deals with what ought to be done or how the economic problems should have been solved, या फिर कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए. ये जो चाहिए वाला वर्ड है, दिस इज अंडर नॉर्मेटिव. फाइन. नाउ आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. इंडिया इज अ पुअर इकोनॉमी. वी नो दैट इंडिया इज अ पुअर इकोनॉमी एज कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी. सो this is a statement. It comes under positive economics. It is telling that how the situation actually is. Fine. And if I give you another statement, China is the most populated country. This is a statement. So what the situation actually is, this is positive economics. Or another statement, there are inequalities of income in our economy. We know there are rich class, middle class. Some people are earning very high, ultra rich they are. So there are inequalities of income in our economy. This statement also comes under positive economics. It is telling what the situation actually is. So अब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो आपको स्टेटमेंट गिवन हो वो हमेशा ट्रू ही हो. फॉर एग्जाम्पल, I am giving you two statements. These statements I am referring from Sandeep Garg book for microeconomics class 11th. ये जो difference भी आप देख रहे हैं, this is also I have taken from Sandeep Garg book for class 11th microeconomics. जो definitions वगैरह भी I am using in my notes which you can access on my blogger account, which the link I have given in description box. ये थोड़ा मैंने रेफर की है ये संदीप गर्ग ऑथर की बुक. आई एम रेफरिंग दिस बुक. सो as I was telling you, positive economics, I will give you
two statements. One is India is the most populated country in the world, and the second statement is China is the most populated country in the world. Now, अब दोनों statements में ही कुछ statement दी जा रही है. Now, it may be true, it may be false. So, but दोनों ही statements positive economics के examples होंगे. बट जो पहली स्टेटमेंट थी कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये फॉल्स है. सो वेरिफिकेशन मीन्स हम क्या स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ट्रू है या फॉल्स है. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के केस में यस वी कैन वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा, हम सर्वे वगैरह कर सकते करके वी कैन वेरीफाई. But in case of normative economics, verification is not possible because it is based on ideals. क्या हुआ नहीं है, क्या होना चाहिए था, वो डील करता है नॉर्मेटिव. सो नॉर्मेटिव कैन नॉट बी वेरीफाइड. नाउ कम टू पर्पस. क्या पर्पस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? इट मेक्स रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या रियल लाइफ में है. देन नॉर्मेटिव, एज आई टोल्ड यू, इट डिटर्मिन्स द आइडियल्स, क्या होना चाहिए था. नाउ सजेस्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पे बेस्ड है, सो इट इज नॉट सजेस्टिव. वेयर एज normative economics is not based upon facts, it is based upon individual opinion कि हम क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए था. तो it is suggestive in nature. Now these examples are there which I have already told you, जहाँ पे भी should word आ जाता है या ought to, वहाँ पे आप normative करते हैं. Fine, I hope this difference between positive and normative is clear to you. Now we come to branches of economics. अब मैंने I am constantly using this word microeconomics का हम चैप्टर कर रहे हैं. What actually microeconomics is? अब जब हम economics पढ़ रहे हैं, now there are two branches of economics. One is micro and other is macro. Microeconomics क्या होती है? जब हम छोटी छोटी यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं इकोनॉमी की, that comes under microeconomics. And when we are studying इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. फाइन, आई होप दिस डिफरेंस इज ऑल्सो क्लियर. अब इसको रिमेंबर, याद रखने का एक तरीका जो संदीप गर्ग बुक में दिया हुआ है, सी द सेकेंड वर्ड इन माइक्रो. सेकेंड वर्ड इज आई. आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, सो इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स. अब वो इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल कंपनी, कोई इंडिविजुअल कोमोडिटी, कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड. जैसे कि supply of a commodity, demand for a commodity, all these come under microeconomics. And if we say income of one consumer, demand of a commodity, all these come under micro. Now जब हम economy as a whole बोलते हैं, and macro, the second letter is A which stands for aggregate or whole. जब हम पूरी economy को पढ़ते हैं, that is macroeconomic study. So national income, aggregate demand means total demand कितनी है economy में, aggregate supply, all these are subjects of macroeconomics. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है वेदर दिस थिंग इज माइक्रो और मैक्रो. तो फॉर एग्जाम्पल दे देंगे सप्लाई ऑफ टोमेटोज या डिमांड फॉर टोमेटोज, तो इट इज वन कोमोडिटी, सो यू हैव टू राइट इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ जब भी आप ऐसे बताते हैं वेदर इट इज माइक्रो और मैक्रो, ऑलवेज गिव द रीजनिंग. जस्ट वन लाइन विल बी इनफ दैट इट इज studying only one commodity, so this will be enough. So always give reasoning. Now one more example is inflation, whether it is micro or macro. Think about it. I'll give the answer. It is macroeconomic study because inflation is rise in prices in the economy, so it is in the economy as a whole, so it is a subject of macroeconomic study. Now another topic comes interdependence of micro and macroeconomics. अब माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है? सो आंसर इज दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये दो हम ब्रांचेस हैं. इकोनॉमिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है और हम कुछ भी पढ़े इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट में, वो इंटर रिलेटेड ही होगा. अब हम सपोर्ट भी करेंगे कि कैसे माइक्रो एंड मैक्रो इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट है.
माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका क्या एग्जाम्पल है? वन इज दैट थ्योरी ऑफ डिमांड, जो मैंने आपको पिछले डे 1 के लेसन में मैंने आपको ये बताई थी कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। अब थ्योरी ऑफ डिमांड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक टॉपिक आएगा। अब ये हम कोई एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल पे तो स्टडी नहीं करा हमने। व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इट वाज स्टडीड। ये थ्योरी पहले बहुत सारे कंज्यूमर्स पे स्टडी की गई थी, ओनली देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और एग्जांपल है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी। किसी एक कमोडिटी का प्राइस जब हम पढ़ते हैं इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट वो हम पूरी इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि मतलब कितना पूरी इकोनॉमी में उसका कितना प्राइस होगा। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं मैक्रो कैसे माइक्रो पे डिपेंड करता है। बेसिकली जब अगर हम इनको ले कि ये छोटे छोटे जो यूनिट्स है ये सब सब्जेक्ट्स है छोटे छोटे, सो इट in micro we are studying small units or small subjects of the economy. Subjects नहीं, basically small structures जो मिलके पूरी इकोनॉमी बनाते हैं। फाइन, सो इसीलिए क्योंकि ये मैक्रो पूरी ऐसे इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है, लेकिन वो भी तो छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स से मिलके बने हैं। फाइन, अब जैसे नेशनल इनकम का एग्जांपल है मैक्रो में। नेशनल इनकम क्या होती है? इंडिविजुअल्स की, सब इंडिविजुअल्स की टोटल इनकम। तो छोटे छोटे लोगों की छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको टोटल मिला के जो हम अगर हम टोटल एज अ होल स्टडी कर रहे हैं दैट इज मैक्रो। सो हेंस मैक्रो इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक और क्वेश्चन आता है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो और मैक्रो? सो द आंसर इज कि कोई भी एक के ऊपर सुपीरियर नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर माइक्रो छोटे छोटे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहा है इकोनॉमी के, तो मैक्रो इज स्टडिंग उन सब स्ट्रक्चर्स को एज एन एग्रीगेट लेवल पे। फाइन, सो नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। So that's all. I hope you liked the video. Please like, subscribe and share as much as you can. Thank you.